یسوع اور سرکاری اہلکار۔ بچوں، پچھلی کہانی میں ہم نے یسوع کے ساتھ عورتوں کی عقیدت مندی پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم یسوع سے فیض پانے والے مردوں کی عقیدت مندی پر نگاہ ڈالیں گے۔ آئیں پہلے یسوع اور ایک صوبہ دار کے مابین واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں صوبہ دار کیا ہوتا ہے؟ یہ موسیٰ کے زمانہ سے چلا آ رہا ایک انتظامی عہدہ ہے۔ خروج 18 باب 25 آیت۔ چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائق اشخاص چنے اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کیا۔ صوبہ دار سینکڑوں پر حاکم ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں یہودیوں پر رومیوں کی حکمرانی تھی۔ چنانچہ رومی حکومت اپنی طرف سے کسی رومی فرد کو یہودیوں پر حاکم نامزد کر دیتی تھی اور سب لوگ ان کے ماتحت ہوتے تھے۔ تب ایک روز ایک صوبہ دار نے کچھ معززین کو یسوع کے آگے التجا کرنے بھیج دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، کیا وہ حاکم نہیں تھا؟ اور یسوع ایک یہودی شہری۔ تب صوبہ دار آخر کیا چاہتا تھا؟ یسوع اور صوبہ دار، لوکا 7 باب 2 سے 5 آیت۔ اور کسی صوبہ دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا، بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ بچوں، رومی آفیسر نے یہودیوں میں سے کچھ معززین کو یسوع کے پاس اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے نوکر کی جان بچانے کی درخواست کرنے بھیجا۔ یہ نوکر مرنے کے قریب تھا۔ یہودی معززین نے یسوع سے التجا کرتے ہوئے بتایا کہ اس آفیسر نے انہیں عبادت گاہ بنا کر دی۔ چنانچہ یسوع فی الفور ان کے ساتھ نوکر کی جان بچانے چل پڑا۔ لوکا 7 باب 6 سے 10 آیت۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبہ دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ بچوں، اگرچہ یہ صوبہ دار یہودی نہیں تھا، بلکہ وہ تو یہودیوں پر ایک حاکم تھا۔ شریعت کے معلم اور فریسی تو یسوع کی حقارت کرتے
اور اس کے خلاف کمر بستہ رہے۔ مگر ان کے برعکس یہ صوبادار یسوع کے آگے مؤدب رہا اور ذرا بھر تکبر نہیں کیا۔ جب یسوع صوبادار کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے یسوع کے پاس اپنے دوستوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ بچوں، صوبادار کے ایمان پر یسوع بہت خوش اور حیران ہوا، کیونکہ رومیوں کو کیا خبر کہ مسیحا کون ہے اور کس لیے آیا ہے۔ صوبادار نے تو یسوع کے شاندار کارناموں کی صرف داستانیں سن رکھی تھیں۔ انہی کی بنیاد پر اس کا ایمان یسوع کے اختیار اور اس کی روحانی طاقت و قدرت پر اتنا قوی ہو چکا تھا۔ چنانچہ یسوع نے کہا، میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ بچوں، صوبادار ایک ایسا آفیسر تھا جو یہودیوں پر نگران تھا۔ وہ ایک رومی تھا، بہت سے سپاہی اس کے ماتحت تھے۔ آئیں اب اس زمانہ کے ایک اور فرد پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اگرچہ اس کے ماتحت رومی سپاہی تو نہیں تھے، مگر اسے تو ریت پر خوب دسترس حاصل تھی۔ یسوع اور نیکودیموس۔ یوحنا 3 باب 1 سے 2 آیت۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیموس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا، جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ بچوں، نیکودیموس نامی یہ شخص یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ وہ موسیٰ کی شریعت سے بہرہ مند تھا اور مسیح کی آمد کی اسے پہلے سے امید تھی۔ تاہم یہ اسرائیلی اہلکار دیکھ لیے جانے کے ڈر سے رات کے اندھیرے کی آڑ میں یسوع سے ملاقات کو گیا۔ یہ بات رومی صوبادار کے اس عزت و احترام سے بھرپور جذبہ کے برعکس تھی جس کا اظہار اس نے یسوع کی شخصیت سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے برملا کیا تھا۔ صوبادار نے یسوع کی قدرت اور اختیار کا اعلانیہ اقرار کیا تھا، مگر یہ یہودی اہلکار جو اعلیٰ مذہبی حیثیت اور رکھ رکھاؤ کا حامل تھا صرف اتنا اقرار کر پایا کہ یسوع خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ یوحنا 3 باب 3 سے 5 آیت۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیموس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یوحنا 3 باب 10 آیت۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ یوحنا 3 باب 14 سے 15 آیت۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے
اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بچوں ذرا وہ وقت یاد کریں جب بنی اسرائیل بیابان میں بڑبڑایا کرتے، اور ہر بات پر شکر کیا کرتے۔ تب خدا نے ان میں زہریلے سانپ بھیجے۔ بہت سے لوگوں کو سانپوں نے ڈس لیا۔ اور وہ لقمۂ اجل ہوئے۔ تب لوگوں نے توبہ کی اور خدا کے آگے گڑگڑانے لگے۔ خدا نے موسیٰ کو پیتل کا ایک سانپ بنا کر بلی پر چڑھانے کا حکم دیا تھا۔ جو کوئی بھی سانپ کا ڈسا اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرتا بچ جاتا تھا۔ یسوع نے یہ مشہور واقعات اسرائیل کے ربیوں کو یاد دلائے اور بتایا کہ اسے پیتل کے اسی سانپ کی مانند صلیب پر چڑھا دیا جائے گا، اور جو کوئی بھی اس پر ایمان کی نگاہ کرے گا فنا سے بچ جائے گا اور حیات ابدی کا تحفہ پائے گا۔ نیکودیموس خوب جانتا تھا یسوع خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یسوع پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا اور یسوع کے کام اس کی نگاہ میں تھے۔ نیکودیموس یسوع کے پاس یعنی خدا کے بھیجے استاد کے پاس چلا آیا۔ حیات ابدی کے راز کی جستجو میں یسوع نے صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیا، حیات ابدی کی راہیں اس پر ایمان لانے اور اس کی نجات چاہے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس پر ایمان کے بغیر کوئی خدا کی بادشاہی میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ بچوں، آسمانی باپ کے ساتھ یسوع کا تعلق دیکھ لینے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہودی عورت، کنانی عورت، رومی آفیسر اور یہودی علم کے ساتھ بھی یسوع نے نہایت مہربان تعلقات رکھے۔ آئیں اب یسوع کے اس تعلق کا جائزہ لیں جو ایک محصول لینے والے کے ساتھ قائم ہوا۔ بچوں بائبل میں مذکور ان محصول لینے والوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ محصول لینے والے ایسے یہودی آفیسر تھے جو رومی حکومت کے لیے اپنے لوگوں سے ٹیکس جمع کرنے کا کام کیا کرتے۔ اس قسم کا عہدہ اور اختیار پا کر یہ لوگ مختلف ہیلے بہانوں اور فریب کاریوں سے اپنے ہی لوگوں سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتے۔ چنانچہ یہودی ایسے لوگوں کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا کرتے۔ یہودیوں کے نقطۂ نظر سے ایسے لوگ گنہگار تھے۔ اسی وجہ سے یہ محصول لینے والے تنہائی کا شکار رہتے۔ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود کوئی انہیں دوست نہیں بناتا تھا۔ ایک دن یسوع یریحو کی طرف گامزن تھا۔ تب کیا واقعہ رونما ہوا؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ یسوع اور زکائی۔ لوکا 19 باب 1 سے 5 آیت۔ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اتر آ کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ لوکا 19 باب 6 سے 8 آیت۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔
जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। लोका 19 बाब 9 से 10 आयत। यसू ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। बच्चों, तन्हाई के सताए ज़काई ने यसू की शोहराए आफाक हस्ती को देखने की ख्वाहिश की, मगर उसका कद इतना छोटा सा था। और किसी ने उसे रास्ता भी तो नहीं दिया। मजबूर होकर गूलर के दरख्त पर जा चढ़ा कि जब यसू वहाँ से गुजरे तो ये उसे देख तो ले। ये तो उसने सोचा तक ना था कि यसू वहाँ ठहर जाएगा और उसे मुखातिब करके उसके घर क़याम का फैसला सुना देगा। बच्चों, जब एक उदास दिल शख्स को ऐसी मोहब्बत मिली तो मालो दौलत की हवस उसी लम्हे बेमानी होकर रह गई। वही शख्स जो दौलत को सब कुछ समझता रहा कहने लगा, ए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। बच्चों, यसू को उसके बदन में बसी सादा मगर भटकी रूह से गरज थी, जबकि सबकी नजरों में वो नहायत नापसंदीदा गुनाहों का मारा एक शख्स था। और ज्यादा अहम बात तो ये थी कि ज़काई ने अपनी तौबा का अमली मुजाहिरा भी कर दिया। अगर यसू की आमद पर ज़काई की खुशी महज एक दावा ही रहती, तब तो ये दिन भी ज़काई के लिए जिस्मानी मशक्कत ही रहता। मगर उसके दिल में तौबा की ख्वाहिश मचल उठी। तभी तो यसू ने कहा, आज इस घर में नजात आई है। मतलब ये हुआ कि यसू हमेशा के लिए उसके घर में बस गया। बच्चों, ज़काई तो नहायत समझदार निकला, क्या यही बात नहीं? यसू ने हमेशा गुनहगारों से दोस्ताना मरासम रखे। जब तबलीगी मुहिम का आगाज किया तो महसूल लेने वालों की दावतों में भी शिरकत की। यसू और महसूल लेने वाले, लोका 5 बाब 29 से 30 आयत। फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफत की, और महसूल लेने वालों और औरों का जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था। और फरीसी और उनके फकीह उसके शागिर्दों से ये कहकर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम क्यों महसूल लेने वाला और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो? मत्ती 9 बाब 12 से 13 आयत। उसने ये सुनकर कहा कि तंदरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफत करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। बच्चों, इस महसूल लेने वाले को मत्ती के अलावा लावी भी कहा जाता था। वो जब से यसू के साथ हुआ अपने दोस्तों को उस्ताद की बातें सुनाया करता और उस्ताद से मुलाकात भी करवाया करता। एक दिन उसके घर में बहुत से महसूल लेने वाले जमा थे।
यसू बड़ी खुश दिली से उनके साथ खाने में मसरूफ था। मगर घटिया और कमतर रुतबा के हामिल ऐसे लोगों में यसू का घुल मिल कर रहना शरीयत के मुअज़्ज़ज़ उस्तादों और फरीसियों को हजम न हो सका। उनकी नजर में ऐसे अफराद के साथ खाना पीना एक उस्ताद के लिए जिल्लत की बात थी। मगर इंसानी रूप में यसू की पैदाइश का मकसद ही उन गुनाहगारों को बचाना था जो अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा की नजात के तलबगार हों। फरीसी और शरा के मुअल्लिम तो कवानीन और रसूमो रवाज तक ही महदूद रहते थे, मगर यसू को लोगों के साथ रहना, उन पर लुत्फो करम की नजर करना अजीज था। चुनांचे यसू ने कहा, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। चुनाचे यसू ने लोगों की तंजिया बातों के बावजूद गुनाहगारों के साथ रहना जारी रखा। आए टैक्स की मद में यसू के कुछ और नजरियात का जायजा लें। यसू और हैकल का टैक्स, मत्ती 17 बाब 24 से 27 आयत। और जब कुफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ, देता है। और जब वो घर में आया तो यसू ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमाऊन, तू क्या समझता है दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जिजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यसू ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन मबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हों, तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिसकाल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। बच्चों, यसू को ऐसे हालात से साबका पड़ा जब उसे अपनी तरफ से हैकल का टैक्स अदा करना था। हैकल का टैक्स वो रकम थी जिसकी अदायगी सब यहूदियों को हर साल करनी होती थी। हर शख्स के जिम्मा नीम मिस्काल की अदायगी थी। हैकल वो मकाम है जहाँ खुदा की इबादत की जाती, और यसू तो खुदा का बेटा है। चूंकि वही तो था जो सारी इबादतों का मरकज था, चुनाचे उस पर तो टैक्स लागू ही नहीं होता था। मगर यसू जानता था, अगर उन्हें कहेगा कि मैं तो खुदा का बेटा हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो, इसलिए मैं टैक्स नहीं देता, तो हैकल के मुंतजमीन के लिए ये बात नागवारे खातिर होगी और वो बरहम होंगे। चुनांचे उसने पतरस से कहा कि जाए और मछली पकड़े। उसे ये भी मालूम था कि किस मछली के मुंह से ये रकम मिलेगी। बच्चों, यसू 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 अफराद को सैर कर चुका था। उसे ये भी मालूम था कि किस मछली के मुंह से रकम मिलेगी। मगर अपने 3.5 साला तबलीगी दौर में वो दूसरों के घरों में ठहरता रहा और दूसरे लोग ही उसे सामान्य जरूरत भी मुहैया करते रहे, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों की थी। बच्चों, यसू अपनी जिंदगी के सारे मसाइल खुद हल कर सकता था, मगर उसने ये जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी ताकि वो उसकी खिदमत कर सकें। यसू जानता है जो लोग उसकी खिदमत का शरफ पाएंगे आसमान पर नहायत शानदार बदला भी पाएंगे। आए यसू की कुछ दूसरे अफराद से गुफ्तगू का जायजा लेते हैं। यसू और चंद दूसरे अफराद। लोका 9 बाब
57 से 62 आयत। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यसू ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। बच्चों, किसी ने यसू से कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने यसू का शागिर्द बनने की तमन्ना की, मगर यसू ने उसे याद दहानी कराई कि लोमड़ियों के भट होते हैं और परिंदों के घोंसले सबके रहने और नस्ल की बूदोबाश के लिए घर होते हैं। मगर मेरा ऐसा कोई ठिकाना नहीं, सर ठिकाने तक को जगह नहीं। मेरी पैरवी में शहाना जिंदगी नहीं मिलेगी। क्या ऐसे में मेरी पैरवी कर पाओगे? फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ए खुदावंद, मुझे इजाजत दे के पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। किसी दूसरे दिन यसू ने किसी और से अपनी पैरवी को कहा, मगर वो अपने बाप के कफन दफन का बहाना करके चल दिया। यसू ने कहा, दुनियादारों को अपनी दुनियावी मसरूफियात में उलझा रहने दो, मगर वो शख्स जो खुदा से मंसूब है उसे अपनी तवज्जो खुदा की बादशाही पर मरकूज रखनी चाहिए। हो सकता है यसू का जवाब बेरुखी समझा जाए, मगर यसू का हरगिज मतलब ये नहीं था कि वालिदैन की ताजीम ना की जाए या अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाही बरती जाए। यसू का मतलब था हमें खुदा के काम में शमूलियत की खातिर ऐसी बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें हमें खुदा की खिदमत से दूर कर देती हैं। एक और ने भी कहा, खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे के अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यसू ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। फिर एक और दिन एक और आदमी ने कहा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यसू ने उससे कहा, अगर तू मेरे पीछे चले और अपने खानदान से चिमटा रहे तो मेरी शागिर्दी के लायक नहीं। बच्चों, इसका ये मतलब नहीं कि यसू हमारी खानदानी मोहब्बत का मुखालिफ है, बल्कि इसका मतलब है हमें खुदा की खिदमत के दौरान अजीजो कारब से दूर भी जाना होगा। एक किसान की तरह हल पर हाथ डालकर आगे ही बढ़ना होगा। मुड़ मुड़ कर पीछे देखने से बचना होगा। खुदा का कहना है, ऐसे लोग जो आगे न बढ़ सकें यसू की शागिर्दी के अहल नहीं, क्योंकि यसू ने भी तो हमारी खातिर खुदा का बेटा होते हुए आसमान का तख्त छोड़ा। अगर हम वो काम न कर सके जो यसू ने किए, तो हम उसके शागिर्द हरगिज नहीं हो सकते। बच्चों, यसू ने ये अल्फाज उन तीनों अफराद से कहे ताकि हम सीखें यसू की पैरवी में हमें कैसा रवैया रखना होगा। पहली बात तो ये कि यसू की पैरवी हंसी खेल की बात नहीं। दूसरी बात, अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तवज्जो रखनी होगी। और तीसरी बात, अपना जाती अंदाजे मोहब्बत तर्क करना होगा।
बच्चों, शायद अभी आप इतने छोटे हैं कि यसू की बात न समझ सकें, मगर एक दिन आएगा जब आप समझदार हो जाएंगे। तब आप जान लेंगे कि खुदा को खुश करने के बुनियादी असूल यही हैं। बच्चों, ये बहुत ही सादा सी बात लगती है, मगर इस पर अमल इतना आसान नहीं। हमें जिंदगी भर इन राहों की पैरवी के लिए यसू की मदद चाहिए। बच्चों, हमें यीशु की राहों पे चलने के लिए साफो शफाफ और हर तरह की फरेबकारी से पाक तर्ज अमल की जरूरत है, क्योंकि यसू खुदा है, कोई बात उससे पोशीदा नहीं। आए अब यीशु की बाकी तालीमात पर निगाह डालते हैं जो उसने अपने पैरोकारों को सिखाई। यसू और लोगों का हजूम। जब यसू ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 अफराद का पेट भरने का मोजज़ा दिखाया, लोग उस हस्ती को बुला ना पाए जिसने खाने को बरकत देकर कई गुना बढ़ा दिया था। उन्होंने सोचा, अगर हम उसके पीछे चलते गए तो कभी भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी, है ना? चुनाचे वो यसू की तलाश में वापस वहीं लौट आए जहां उन्होंने खाने में बरकत पड़ती देखी थी। यूहन्ना 6:24 से 26 आयत। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ओ ऐ रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मोजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। बच्चों, यीशु ने मोजज़ा किया और 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 अफराद को सैर कर दिया। अगले दिन लोग फिर यीशु को ढूंढने निकले। वो इतने बेताब थे कि कश्तियों पर चढ़ गए। जब यीशु ने उन्हें देखा तो साफ कह दिया, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि खुदा की दी हुई ताकत से मेरे मौजज़े देखकर मेरी राहों पे चलो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी दी हुई रोटियां खाकर सैर हुए। बच्चों, यीशु को लोगों की पोशीदा सोच का फौरन इल्म हो जाता है। चुनांचे वो ये भी जान लेता है कि हम संडे स्कूल जिंदगी की सच्ची राहें सीखने आए हैं या उछल कूद करने और तोहफे पाने। यीशु की यही ख्वाहिश रहती है कि हम उससे मोहब्बत रखते हुए उसकी राहों की तलब करें, दुनियावी फायदों के लिए नहीं। आए एक शख्स के साथ यीशु की गुफ्तगू से अंदाजा लगाएं कि यहाँ हमें जिंदगी की कौन सी हकीकत सीखने को मिली। यीशु और एक शख्स की गुफ्तगू। लूका 12:13 से 15 आयत। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, इसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। बच्चों, उस आदमी ने जब मीरास की तकसीम में यीशु से मदद चाही, तो यीशु ने इस मौका को हमारी तरबियत के लिए इस्तेमाल करते हुए नसीहत की कि हमें हर तरह की हिरस
या मालो दौलत की फरावानी की ख्वाहिश से बच कर रहना चाहिए। खुशहाल जिंदगी का ये मतलब नहीं कि हमारे पास कितना मालो दौलत है, हमारा घर कितना आलीशान है, हमारे मालदार अजीजों अकारिब या नौकर चाकरों की कितनी भीड़ हमारे गिर्द रहती है। खुदा की नजर में फरावानी का मतलब जिंदगी की फरावानी है। यानी हयाते अबदी का हसूल। यसू ने कहा था, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। यसू चाहता है हम दुनियावी मालो दौलत की बजाय आसमानी खजानों की कदर कीमत समझें, क्योंकि दुनियावी खजाने तो आर्जी हैं, छिन जाने और फना हो जाने को हैं। यसू नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी भर की जुस्तजू का हासिल जाया हो जाए। ला हासिल की जुस्तजू कोई अक्लमंदी तो नहीं। बच्चों, आज हमने रूमी सूबादार, यहूदी अहलकार निकोदीमुस जो रात की तारीकी में छुपकर यसू की मुलाकात को आया, तौबा करने वाले ज़काई, महसूल इकट्ठा करने वाले दोस्तों और यसू की राहों पे चलने की ख्वाहिश करने वाले कुछ अफराद के हालात व वाकयात सुने। बच्चों, यसू इंसानों के दिली हालात खूब जानता है। वो लोगों के मुख्तलिफ रवैयों, उनके फितरी रुझान और काबिलियत के मुताबिक उनकी तरबियत करता है, ताकि उन्हें खुदा की बादशाही में दाखिल कर ले। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, रूमी सूबादार नहायत इनकसारी से यसू की ताज़ीमो तकरीम का ख्वाहिशमंद था, मगर यहूदी ऑफिसर यसू के साथ एलानिया ताल्लुक से घबराता रहा। प्यारे बाप, मेरे दिल को सच्चे जज्बों से माला माल कर दे, मुझे उस राह पे डाल दे के सूबादार जैसा ईमान पाऊं, तेरी ताज़ीमो तकरीम करूं, तेरी राहों पे चलूं। प्यारे बाप, ज़काई ने यसू की नजात की दौलत पाई और पुराने महबूब खजाने लुटा दिए, क्योंकि यसू उसके घर चला आया। मगर जिन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से जी भर कर ऐश भी कर ली, वो नजात की दौलत की बजाय और खाने की ख्वाहिश में मचल गए। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा कि उछल कूद और आवारा गर्दी की खातिर संडे स्कूल से गायब ना हुआ करूं। इस बात में भी मेरी मदद फरमा कि महज खेल कूद में हिस्सा लेने या खाने पीने के चक्कर में संडे स्कूल ना आया करूं। प्यारे बाप, मुझ पर रहम फरमा, मुझे ज़काई जैसा बना दे, जिसने नजात की खातिर अपने महबूब खजानों से जान छुड़ा ली। प्यारे बाप, यसू ने कहा था, किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं, मगर मैं तो फिर भी दौलतमंद बनना चाहता हूँ, क्योंकि दौलत के होते हुए बात बात पर कम अज कम सिसकना तो नहीं पड़ता। और फिर दौलतमंद कार में बैठे जहाँ चाहे घूम आए, दौलतमंद तो छुट्टियां गुजारने दूसरे मुल्कों की सैर को भी जा सकते हैं। प्यारे बाप, क्या जरूरी है तेरा शागिर्द बनने की ख्वाहिश हमें दौलत से महरूम कर दे? मेहरबानी से मुझे अक्ल दे, तेरी मर्जी को समझूं, मेरी मदद फरमा के मुसर्रत भरे जज्बे लिए तेरी राहों पे चलूं, यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। क्योंकि
आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है।